Ramparts of Lal Killa, tricolor unfurling in a clear blue sky, hundreds of students and dignitaries, and the occasion 15th of August 2023. All combined, the 10th speech of the Prime Minister Narendra Modi brought back vivid memories of not so distant past, the last speech of former Prime Minister Manmohan Singh. What a stark difference. In 2013, Manmohan Singh was battling charges of corruption, nepotism, connivance, all over degenerative politics, policy paralysis, and being a remote controlled Prime Minister. Contrast this with Prime Minister Narendra Modi. I guess the comparison ends before it actually begins. Except the fact that both Prime Ministers delivered 10 Independence Day speeches from the ramparts of Lal Killa. अब यह दावा तो किया ही जा सकता है कि दोनों नेताओं की पर्सनालिटी में जमीन आसमान का फर्क है. हाँ है, बड़ा फर्क है. लेकिन भरोसा, उम्मीद, कॉन्फिडेंस और अग्रेशन से भरे नरेंद्र मोदी को देखकर शायद ही कोई ये सोच भी सकता है कि 2024 के चुनाव के बाद जनता की अदालत तय करेगी कि 15 अगस्त 2024 को लाल किले की प्राचीर से अगला भाषण मोदी ही देंगे या कोई और. हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताल ठोककर जरूर कह दिया. उन्होंने कहा, कठोर परिश्रम किया है, देश के लिए किया है, शान से किया है, सिर्फ और सिर्फ नेशन फर्स्ट के भाव से किया है. 2019 में परफॉर्मेंस के आधार पर आप सब ने मुझे अपना आशीर्वाद फिर से दिया था, क्योंकि 2014 में मैं पहली बार प्रधानमंत्री बना था. परिवर्तन का वादा मुझे यहां तक लेकर आया, परफॉर्मेंस मुझे दोबारा ले आया, और आने वाले 5 अभूतपूर्व साल विकास के होंगे. यानी 2024 में 15 अगस्त को एक बार फिर भाषण देने आऊंगा, ये कह गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. आज तक चुनाव से पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से ऐसा ऐलान नहीं किया था. ओवर कॉन्फिडेंस कहिए या हिचकिचाहट छिपाने की दमदार एक्टिंग, whatever you may believe, only Modi could have done this. In his 90-minute speech, Prime Minister Narendra Modi touched upon the burning issue of Manipur and Manipur violence for approximately 2 minutes, claimed that peace is on its way and the central and the state governments are working towards it. Making the bulk of his speech a calling card of achievements that his government has lavished upon the people of India, Mr. Modi reserved special focus on women and backward caste centric schemes or the progress made under his tenure. उपलब्धियों की लिस्ट इतनी लंबी उन्होंने सामने रखी, कुछ का जिक्र तो खैर अपने आप में काफी होगा ये बताने के लिए कि उन्होंने क्या क्या नहीं कहा होगा. उन्होंने कहा, आज हमारे पास डेमोग्राफी है, आज हमारे पास डेमोक्रेसी है, आज हमारे पास डाइवर्सिटी है. डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी की ये त्रिवेणी भारत के हर सपने को साकार करने का सामर्थ्य रखती है. 10 साल में राज्यों को भारत सरकार मिलने वाली राशि 100 लाख करोड़ तक पहुंचा चुका है. स्थानीय निकाय के विकास के लिए 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा प्रतिवर्ष जा रहा है. गरीबों के घर बनाने के लिए 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा खर्च हो रहा है. यूरिया का बैग किसानों को 300 रुपए में मिल रहा है. मुद्रा योजना के 20 लाख करोड़ रुपए नौजवानों को स्वरोजगार दिला रहे हैं और 8 करोड़ लोगों ने नया कारोबार शुरू किया है. 200 करोड़ लोगों को कोरोना का वैक्सीन लगा और दुनिया में सबसे तेज गति से 5G रोल आउट भारत में हो रहा है. आज देश सुरक्षा की अनुभूति कर रहा है. सीरियल बम धमाकों का जमाना बीत चुका है. And then came the Modi guarantee.
आने वाले 5 साल में मोदी की गारंटी है देश पहले 3 वैश्विक इकोनॉमी में अपनी जगह ले लेगा, पक्की जगह ले लेगा। यह मोदी का गारंटी है, मोदी की गारंटी है। This was in a sense another assertion that the Bharatiya Janata Party led government would come back with a thumping majority in 2024 Lok Sabha elections, and on 15th August 2028 he shall stand true to his grand standing before he addresses his 15th speech on Independence Day. Before wrapping up, the Prime Minister, however, converted the Independence Day speech into a mini election rally, lashing out at dynastic and appeasement politics and the deep-seated corruption. Mr. Modi was at his best cornering the opposition parties. It seemed he had taken out a leaf from his no confidence motion speech in Lok Sabha or from any of his recent public rallies which he had addressed after the formation of India, the 26 party grouping. उन्होंने कहा, आज मेरे देश के लोकतंत्र में एक ऐसी विकृति आ गई है जो कभी भारत के लोकतंत्र को मजबूती नहीं दे सकती है। ये एक बीमारी है और ये बीमारी है परिवारवादी पार्टियां। परिवारवादी पार्टियों का तो मंत्र क्या है? पार्टी ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली। उसी प्रकार से तुष्टीकरण ने सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा नुकसान किया है। तुष्टीकरण की राजनीति, तुष्टीकरण का सरकारी योजनाओं का तरीका, इसने सामाजिक न्याय को मौत के घाट उतार दिया है। और इसलिए हमें तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, इन दोनों को पछाड़ना होगा, क्योंकि ये विकास के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अब यहां कुछ सवाल खड़े होते हैं साहब। 10 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की सरकार है और देश के कई राज्यों में भी, यानी कि देश में कई जगहों पर डबल इंजन की सरकार है। तो फिर क्या विपक्षी शासित राज्यों में ही परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार है? क्योंकि डबल इंजन की सरकारों में तो ना परिवारवाद है, न तुष्टीकरण है और ना ही भ्रष्टाचार। तो आखिर ऐसा क्यों है कि 10 साल के बाद भी देश की ये 3 बीमारियां खत्म ही नहीं हो रही, या अगर खत्म भी हुई हैं तो इतने छोटे पैमाने पर कि किसी को महसूस नहीं हो रहा। यह बताइए कि जब सफाई अभियान की घोषणा होती है, महिलाओं को समान अधिकार देने की बात होती है, सबके लिए शौचालय बनवाने और खुलवाने की बात होती है, काला धन के खिलाफ अभियान चलाने की बात होती है, तो मोदी सरकार अपने आप को इसमें सफल मानती है। तो फिर भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद की राजनीति पर अभी तक मोदी सरकार ने कोई ठोस वार क्यों न किया? क्या आज बिना घूस दिए लोगों को लाइसेंस मिल रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस? क्या आज सरकारी महकमों में घूस नहीं दिया जा रहा? क्या जनता आज घूस नहीं देती है? दे रही है ना? तो यह भी तो भ्रष्टाचार है। इसके बारे में कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? इसके अलावा जिन विपक्षी नेताओं पर ये सारे आरोप लगाए जा रहे हैं, उनमें से कई तो ऐसे हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। इन सब नेताओं को, जिनके ऊपर केस चल रहे हैं, मामले हैं, ईडी के, सीबीआई के, तमाम तरह की जांच एजेंसी के, विजिलेंस के, इन सब लोगों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का क्यों और कैसे मौका दिया जा रहा है? किसके निर्देश पर हो रहा है? तुष्टीकरण की राजनीति अगर डबल इंजन की सरकारों में नहीं है, तो मणिपुर में क्या हुआ है? हरियाणा के नूह में क्या हुआ है? मणिपुर में ईसाई कुकी और हरियाणा में मुसलमानों पर जुल्म हुआ या नहीं हुआ? और अगर हुआ तो कितने हिंदू या कितने मेतई जेल की सलाखों के पीछे हैं?
ज्ञानवापी मंदिर का पूरा मसला, या यूं कहें कि ज्ञानवापी का पूरा मसला कोर्ट में है। फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ज्ञानवापी पर बयान देकर जन भावनाओं को एक दिशा नहीं दे रहे हैं क्या? अदानी समूह पर तमाम उंगलियां उठने के बावजूद, इस समूह के ऑडिटर डेलॉयट की आपत्तियों के बावजूद जांच कोसों दूर है और एक तरह से क्लीन चिट है। सवालों की लिस्ट बड़ी लंबी है जनाब। ठीक वैसे ही जैसे सरकार के दावे अनंत हैं कि जनता की भलाई और उपलब्धियां कितनी ज्यादा हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि अब जनता को तय करना है कि उसके लिए ज्यादा मायने क्या रखता है, सरकार से पूछे जा रहे सवाल या सरकार के द्वारा किए जा रहे काम। लेकिन जो भी कहिए, मोदी जी ने तो यह कह ही दिया है कि 2024 में मैं फिर आऊंगा। सिर्फ लाल किले के प्राचीर से ही नहीं, उन्होंने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भी यह कहा कि मैं फिर आऊंगा। जो लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में हैं, वो इसे आत्मविश्वास कहते हैं। जो विरोध में है, वो अति विश्वास कहते हैं। लेकिन असली परीक्षा तो जनता की अदालत में है। नमस्कार।